Hello everyone, welcome to another session on Math 1 in the algebra where we are discussing the chapter called quadratic equations. हमने देखा था इस chapter में there are a couple of topics that we have to cover. The starting being quadratic equations का introduction और उसके बाद roots of quadratic equation, how to solve them, what is a discriminant and some applications. Out of all these things we have already covered the introduction part जिसमें हमने सीखा कि quadratic equation है कि नहीं वो कैसे पहचानेंगे, and then we also studied how to write it in the standard form and find its coefficients a, b and c, which means today in this lesson we are going to proceed ahead to understand what are roots of quadratic equation. Under this topic of roots of quadratic equation, the objective that we will cover today is we will be able to check if a number is root of the given quadratic equation or not. हमारे पास एक इक्वेशन रहेगा, एक नंबर रहेगा और हमें बताना है कि वो नंबर उस इक्वेशन का रूट है कि नहीं. From henceforth you can start writing things in your notebook. Okay, now to cover this objective the first thing that we need to know is what are roots of equation. मतलब roots होते क्या है, roots किनको बोलते हैं. In simple terms roots are solution. इसको याद रखने के लिए आप ये ट्री अपने दिमाग में रखिए वेर ये ऊपर का पार्ट आपका इक्वेशन है और जिस चीज़ से ये जुड़ा हुआ है, जो इसको आखिर बांध के रखा हुआ है नीचे, दैट इज द सॉल्यूशन. मतलब उसकी जो जड़ें हैं, सॉल्यूशंस है, वो रूट्स है. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस बेटर. लेट मी टेक अ वेरी सिंपल इक्वेशन 4x = 12. अगर मैंने आपको बोला इसको सॉल्व करो, इसका मतलब क्या है, आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे. इस केस में जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे यू विल डिवाइड 12 by 4 and you will get x = 3. Hence, I will be able to say that 3 is a root of this equation because it satisfies the equation. इस लाइन का मतलब क्या है, satisfies मतलब जब मैं x की वैल्यू 3 लेके वापस इक्वेशन में पुट करूंगी, so 4 into 3 12. This is going to give me the same number जो यहाँ equal to के बाद में given है. हर केस में अगर वो रूट है it has to satisfy this equation. मतलब यहाँ वैल्यू पुट करने से आपको ये दूसरी वैल्यू मिलनी चाहिए. Let's see this for another set of equation. आपने linear equations in 2 variables already solve किया है, which means you know how to solve this. When you solve these, the answer that you get for x and y is -2 and 4. अब इस केस में I would say that -2 and 4 together satisfies both the equations and hence x equals to -2 and y equals to 4 are roots of this equation. Satisfy मतलब क्या? When I take this x equals to -2 and put it here, when I take y equals to 4 and put it here, let's see what happens. 4 into -2 is -8 plus 3 into 4 is 12. So -8 plus 12 is giving me 4. You can do the same thing for the second equation and you will see it gives 8. मतलब जब आपने ये वैल्यूज पुट की तो ये सेटिस्फाई कर रहा है आपके इक्वेशन को. That is why these two are roots of this equation. मतलब ये इक्वेशन अगर मेरा ट्री है तो इसके रूट्स क्या है, जो मैंने सॉल्व करके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाली वो. फ्रॉम हियर वी कैन मूव अहेड टू अंडरस्टैंड व्हाट आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्योंकि चैप्टर ही हमारा क्वाड्रेटिक है तो हम लोग क्वाड्रेटिक के साथ बात करेंगे. वी विल हाउएवर कीप इन माइंड रूट्स मतलब सॉल्यूशन. मतलब आपको बोला सॉल्व करो, मतलब x की वैल्यू फाइंड करो, विच मीन्स यू हैव टू फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ x विच आर गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन दैट वी आर टेकिंग अहेड. पहली बात, क्या ये क्वाड्रेटिक है? हाँ, क्योंकि x की पावर 2 है और इससे ज़्यादा कोई पावर नहीं है. सेकंड, क्या ये स्टैंडर्ड टर्म्स में है? हाँ, स्टैंडर्ड टर्म्स में है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ax² + bx + c. व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ a, b and c? a is 1 here, b is 5 and c is -6. इसके रूट्स निकालने हैं. मतलब मुझे वो वैल्यू चाहिए x की जो जब मैं इसमें पुट करूँ तो मुझे 0 मिले. Let's do a hit and trial method. Randomly numbers उठाते हैं. I will start with x = 1. पुट करके देखते हैं. When I put the number x = 1, x² मतलब 1² plus 5x means 5 into 1, -6 तो -6 रहेगा. जब आप इसको सॉल्व करोगे 1² तो 1 ही रहेगा, प्लस 5 -6, 6 - 6 is 0. Oh yes, for x = 1 ये इक्वेशन सॉल्व होके 0 दे रहा है. Hence we can say that x = 1 is a root of this equation x² + 5x - 6. Let's try to do this for the another number. एक और नंबर लेते हैं x = 2. अब ये वैल्यू पुट करके देखो, आप पॉज करो, खुद से ट्राई करके देखो क्या आ रहा है.
व्हेन आई पुट द वैल्यू x इक्वल टू 2, इसको सॉल्व करके मुझे आ रहा है एक साइड में 8, दूसरे साइड में 0. कैन 8 एवर बी इक्वल टू 0? नो, आई शुड हैव गॉट 0, बट मुझे 8 आया, विच मीन्स दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. 8 कैन नेवर बी इक्वल टू 0 एंड हेंस x इज नॉट अ रूट ऑफ द इक्वेशन. x इक्वल टू 2 पुट करने से मुझे 0 नहीं मिला. दैट इज वाई x इक्वल टू 2 इज नॉट अ रूट. लेट्स ट्राई विथ वन मोर नंबर दैट आई एम गिविंग यू, विच इज x इक्वल टू -6. ये नंबर मैं आपको दे रही हूँ, कैसे आया ये अभी आप मत सोचिए और खुद पुट करके देखिए कि ये इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं. ओके, लेट्स सी. व्हेन आई पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -6, पहली बात -6 स्क्वायर, जब आप स्क्वायर करेंगे तो माइनस का पॉजिटिव बन जाएगा. 5 इंटू -6 इज गोइंग टू गिव यू -30. 36 माइनस 36 इज एक्चुअली 0. मतलब x इक्वल टू -6 पुट किया तब भी इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया. सो x इक्वल टू -6 इज ऑल्सो अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन. तो आपने क्या देखा, एक ही इक्वेशन के दो रूट्स हैं, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -6. फ्रॉम हियर वी रीच अ कंक्लूजन दैट quadratic equations always have two roots. We call them alpha and beta. इस केस में x इक्वल टू -1 एक रूट है, x इक्वल टू -6 एक रूट है. आप किसी को भी अल्फा बोल सकते हो, किसी को भी बीटा बोल सकते हो, वो आपके ऊपर है. बट वन थिंग इज फॉर श्योर, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब सॉल्व करने से x की दो वैल्यूज आएंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी. दिस इज फॉर श्योर. Let's move ahead from here and see some examples. It says for the quadratic equation 2x square minus 7x plus 6 equals to 0, I have to check whether x equal to -2 is a solution of this equation or not. या फिर solution की जगह पे आप root भी बोल सकते हो. It's the same thing. मतलब इक्वेशन दे दिया आपको, एक नंबर दे दिया x equal to -2, आपको चेक करना है कि ये इस इक्वेशन का रूट है कि नहीं. Pause for a second, think आप क्या कर सकते हो इसमें, and you are going to write this in the notebook. What we will do is we will put x equal to -2 in this equation. जब हम पुट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रहा है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट किया, -2 का होल स्क्वायर, माइनस 7x, 7 इंटू एक्स की जगह पे -2 प्लस 6. When you are going to solve this further, मुझे एक साइड में 28 मिल रहा है, बट मुझे 0 चाहिए था, मुझे 28 नहीं चाहिए था. दैट इज वाई सिंस इट इज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू -2 इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. यहाँ पे 0 लिखा है, मुझे 0 मिलना चाहिए था, बट यहाँ 28 आया, विच मीन्स इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. हेंस x इक्वल टू -2 इज नॉट अ सोल्यूशन. So a new concept that you learned today, and yes, it was very easy. It turned out to be easy. खाली वैल्यू पुट करके चेक ही तो करना है कि यहाँ पे जो नंबर लिखा है 0 वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. So congratulations, you have gone a step ahead. Let's move ahead. इसी में एक और नंबर चेक करते हैं. This time it is called x equal to 3/2. पहले हमने -2 के लिए चेक किया, अब इसी इक्वेशन में x equal to 3/2 को चेक करेंगे कि ये इसका रूट है कि नहीं. What we are going to do is same thing. x की जगह पे 3/2 का वैल्यू पुट करेंगे. When you put these values, this is how it is going to look. जहाँ जहाँ x है वहाँ 3/2 आएगा. जब आप इसको ओपन करोगे, what happens is, see, 3/2 का होल स्क्वायर, मतलब ऊपर वाले नंबर का होल स्क्वायर 9, नीचे वाले नंबर का होल स्क्वायर 4. ये वाले ब्रैकेट को जब आप ओपन करोगे तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट. ऊपर वाले नंबर्स को ऊपर से मल्टीप्लाई करो, 7 is 21 एंड 2 एट द बॉटम. इसके बाद क्या कर सकते हैं, आप इस 2 और 4 को कैंसिल करोगे. बॉड मास याद रखना, ठीक है, पहले मल्टीप्लिकेशन होगा. इस 2 और 4 को कैंसिल करो तो आपको 9/2 मिलेगा, -21/2 प्लस 6 की जगह पे मैंने इसको 12/2 लिख दिया ताकि तीनों नंबर्स नीचे में सेम रहे. ओके, इसके बाद नीचे तीनों नंबर सेम है तो आप डायरेक्टली एलसीएम ले लो, 2 ही आएगा नीचे, एंड दैट इज 9 -21 प्लस 12, which is ultimately going to give you 0 only. आपको 0 चाहिए था, आपको 0 मिल गया, and hence 3/2 is a solution of this equation. Congratulations again, आपने एक फ्रैक्शन के लिए भी चेक कर लिया कि वो रूट है कि नहीं इक्वेशन का. Now that you have solved these two, it's time for you to try some questions yourself. Make sure you're writing them in your notebook. तो ये एक quadratic equation given है. You have to determine whether the values given against each equation, okay? इक्वेशन के साथ में जो वैल्यूज गिवन है
वो उसकी रूट्स है कि नहीं। जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, आपको चेक करना है 1 by 1 कि x इक्वल टू 1 रूट है कि नहीं, x इक्वल टू -1 रूट है कि नहीं। वी आर गोइंग टू डू दिस 1 by 1। टेक सम टाइम, पॉज द वीडियो, ट्राई इट योरसेल्फ, पहले वाले एग्जांपल्स को देख के प्रोसीड करिए। ओके, नाउ वंस यू हैव सॉल्व्ड, द आंसर दैट यू शुड गेट इज 1 इज गोइंग टू बी अ रूट। मतलब जब आप 1 पुट करोगे आपको 0 मिलेगा, जब आप -1 पुट करोगे हाउएवर आपको 0 नहीं मिलेगा, आपको कुछ और नंबर मिलेगा। फ्रॉम वेयर आई कैन से 1 इज अ रूट बट -1 is not a root of this equation. Similarly, let's try another question of the same type. इस बार इक्वेशन बदल गया, it's 2m square minus 5m equals to 0 और m की वैल्यू आपको पहले 2 के लिए चेक करनी है and then 5/2 के लिए चेक करनी है। ओके, let's again pause it over here, think for some time what it can be and then we'll see what is this. The answer that you should get here is 2 is not a root. 2 is not a root but 5/2 is a root. If you are stuck somewhere to check कि fractions को कैसे solve किया, I am putting here the solution. Pause the video, step by step check करो यहाँ पे क्या हुआ। इसका square किया, 4 आया, 2 यहाँ पे cancel हुआ and see how we have proceeded over here. And hence 5/2 के जगह पे जब हमने put किया तो 0 आया and hence 5/2 is a root of this equation. With this we have covered the next objective जो हमने आज शुरू किया था, which is we will be able to check if a number is root of the equation or not. And thank you so much everyone for engaging in this video. Have a nice day. Bye.